Hello everyone, welcome to AptPlus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is a Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the news with some additional information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic. So today is 19th of January and these are the list of the topic for the day. The first topic is new monsoon forecast model that is coming up in India. The second important topic is experts to review the state's labor law. The third important topic is increase in the import duty that is likely to be coming up in the coming budget. And the pre-budget consultation that was there between the state government and the central government. And the last topic is the vaccine and the resilience. So these are some of the important topics of the day. Apart from this, I'll be also discussing the MCQs question at the end of this session and the explanation of yesterday questions, right? So it would be very evident for you to know the correct answers and the explanation so that you can use that on the upcoming prelims examination part. Now, without any further ado, let's get started with the first discussion, that is new monsoon forecast model. The news has been reported in the Hindu, and talking about the importance of this news, this can be significant for your general studies paper 1 and general studies paper 3. At the same time, when the new initiative is there, this can be again very much relevant for the prelims examination as well. So the Indian Meteorological Department, call it IMD, is likely to introduce the new monsoon model. एक नई monsoon model लेकर के IMD department आ रही है, and the department is working to improve the rainfall predictions. इंडिया में जो rainfall predictions है pan India पूरे country में, उसको कैसे और अच्छा किया जा सके, उसको और किस तरह से accurate किया जा सके. So that is the entire rationale behind this initiative, right? So this would improve its rainfall prediction in the entire country. Now talking about monthly wise rainfall forecast की जाएगी. It was not there previously. Now they would be coming up with the month wise rainfall forecast. तो जो IMD है, they would be giving the month wise rainfall forecast for the coming monsoon season. जो आने वाली monsoon season है, उसमें they would be giving month to month rainfall forecast. And IMD would also be giving the forecast of flood warning to the Central Water Commissions. जो Central Water Commission है, जिसको CWC के नाम से भी जाना जाता है, CWC. So they would be giving it for 5 days. Previously होती क्या थी, ये चीज नोट करने वाली है कि इससे पहले जो forecast होती थी, that was only given for 3 days, right? It was only given for 3 days. Now the power would be increasing because they are getting some advancement in technology. So they would be giving the prediction for 5 days, right? Now the IMD has made forecast for normal last year, जिन्होंने कहा था कि जो rainfall है वो normal receive होगी, but actual में हुआ क्या, जो rainfall थी वो कई ज़्यादा receive हुई है from the predictions. So the IMD department has said कि rainfall would be normal, but it was very high. It was on the higher side, right? So the department will use the multimodal ensemble approach to give the monthly outlook for the 4 months of the rainfall seasons. और जो करेक्ट प्रिडिक्शंस होती हैं वो हमारे फार्मर्स को भी बहुत हद तक हेल्प करती है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो रोल इनरोल्स हैं उनको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द IMD. बिकॉज अगर आपने कहा है कि रेनफॉल एवरेज होगी और रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है तो अकॉर्डिंगली थिंग्स आर चेंजिंग. सो नाउ दिस वुड बी कमिंग टू द मोर एक्यूरेसी. और IMD अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बातों से लोग काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी गिविंग सम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस दैट वुड बी गिविंग ऑन द मंथली बेसिस. ना पैरामीटर्स फॉर द फोरकास्ट, कौन कौन से पैरामीटर्स अगर प्रेजेंटली बात करें, सो मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज MMCFS एंड स्टैटिकल एंसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम SEFS. ये दो मॉडल्स हैं, ये जो दो फोरकास्ट मॉडल हैं पैरामीटर्स है जिन पे ये काम करती हैं. और IMD मॉडलिंग ग्रुप की अगर बात करें, दे हैव बीन आस्क्ड टू इम्प्रूव देयर फोरकास्ट फॉर द रिवर कैचमेंट्स. जो रिवर कैचमेंट्स होंगे उन पे भी ये अपनी जो मॉडल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगी ताकि नए फीचर्स इंक्लूड किया जाए. एंड दिस वुड बी ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द 5-day फोरकास्ट फॉर सब रिवर कैचमेंट इन द कंट्री. जितने भी रिवर्स हैं, सब रिवर्स के जो कैचमेंट एरियाज हैं उनमें बेसिकली 5 days तक की ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, फोरकास्ट देने के लिए IMD would be liable. Now the new forecast model would also be deployed for forecasting urban flooding like cities in Chennai, Mumbai, because मुंबई में हमने हर बार ही देखा है
कि फ्लडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. द सेम लाइज विद द चेन्नई एंड पार्ट्स ऑफ बिट इन कैलकाटा. कैलकाटा इज ऑल्दो नॉट दैट मच फ्लडिंग, बट दो सिटीज़ जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक चेन्नई और मुंबई, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं in terms of urban flooding. So they would be also giving the new model would be also providing the forecast, the prior forecast and the deployment, the measures that to be taken in the cities like Chennai and Mumbai. Now the second topic, that is experts to review the state labor laws. जो नई लेबर कोड बिल लेकर के जो आई है, सरकार ने नए लेबर कोड लाए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए डिस्कशंस कमेटी बनाई गई है, बिकॉज देयर इज अ प्रोटेस्ट दैट इज कमिंग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर EPFO एग्जामिनेशंस, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है. एंड ऑल्सो लेबर लॉ इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एक लीगल कंसल्टेशन बनाने की बात की गई है. एंड ये जो लीगल कंसल्टेशन होगी, दे वुड बी प्रोवाइडिंग द स्टेट लेबर लॉज इन कॉन्सोनेंस विद द 4 न्यू लेबर कोड्स. जो सरकार की 4 नई लेबर कोड्स आई हैं, उनके बारे में स्टेट्स की क्या राय है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट आए थे यूनियन की तरफ से. दे वांटेड दिस लॉ नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड, सो दे वांट टू एग्जैक्टली नो द प्रिसाइज रीजन एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिपरकशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ. सो द कमिटी वुड बी लुकिंग इनटू द एम्बिट्स ऑफ दिस. Now, the matter would be also taken up by the states if the law were found out to be tunes with the code. तो ये जो कमिटी है, उनको ये सारी चीज़ें देखनी है कि क्या जो नई कोड्स हैं वो स्टेट के लॉज से वहाँ की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को कुछ फ़ायदा पहुँचाती है या नेगेटिवली इफेक्ट करती है. ये सारी चीज़ें कमिटी को देखना है. अब बात करें अगर लेबर की, सो एज यू नो, लेबर इज़ अ सब्जेक्ट इज जॉइंटली शेयर्ड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, and they have led several stalemates when it's come to the issues regarding to the wages, employment, social security और industries. इसको लेकर के काफ़ी वाद विवाद हो चुकी है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ऑलरेडी. So this law which is coming, they are amalgamating 27 laws into 4 laws. Let's see how they are going to work. Now most of the central union however have protested against this code and they term it as anti-workers. सो एक प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी फार्मर्स कर रहे हैं, दूसरी प्रोटेस्ट अगर ये हो गई तो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, राइट. सो दिस इज द रीजन दैट गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू नेगोशिएट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. उन्होंने कमिटी बना दी है ताकि ज़्यादा लोग फोर फ्रंट पे नहीं आ सके, लाइमलाइट पे नहीं आ पाए. नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू कोड्स की अगर बात करें, द न्यू कोड ऑन द वेज, जो 4 कोड है वो वेज पे है, दूसरी सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, occupational safety, health and working condition, that has to be implemented by April 1st, 2021. So this is the target that government is implementing this laws coming from April 1st. Now अगर बात करें the rules की, the rules would be finalized by the end of this month. जनवरी के एंड में सारी चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि बजट के बाद तुरंत ही इसके फाइनेंशियल एलोकेशंस किए जाएंगे और अकॉर्डिंगली वो काम करेगी. Now the 4 code has been amalgamated 29 central labor laws. जो पहले 29 laws थे, 29 laws को बाइफर्केट करके 4 laws में 4 codes में फाइनली इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, राइट. सो दिस वुड इंक्लूड द कवरिंग द मैटर ऑफ मिनिमम वेजेस. कौन कौन से मैटर्स कवर होंगे? मिनिमम वेज, बेनिफिट्स फॉर द वर्कर एंड द स्ट्राइकर्स. सो व्हाट वर द प्रॉब्लम व्हिच वाज देयर फॉर द स्ट्राइकर्स एंड द वर्कर, दैट वुड बी आल्सो टेकन इनटू द कंसिडरेशन. And for the first time, gig and platform worker has been covered under the social security scheme. ये एक ऐसी स्कीम होगी जहां अगर इसके बेस्ट पार्ट की बात करें तो गिग वर्कर वैसे वर्कर होते हैं जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं या फिर जो छोटे मोटे बेसिकली छोटे ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन जो होती है उनके लिए गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर को भी कवर किया जाएगा अंडर द सोशल सिक्योरिटी एम्बेड. सो दिस इज अ पॉजिटिव नोट ऑफ दिस बिल और द कोड एंड द रूल्स अंडर द कोड विच 2019 जो है वो ऑलरेडी फाइनलाइज हो गई है, उसको भी इम्प्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट. Now talking about the other news, that is increase in the import duties likely. जो import duties हैं वो बढ़ाई जाएगी. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों की गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको प्रमोट किया जा सके. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड सम इंफॉर्मेशन कैन अगेन बी रेलेवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में जो बजट आएगी उसको आप कोलैबोरेट करके इस न्यूज़ को देख सकते हैं.
Now, the upcoming budget, that is 2021-2022, is likely to raise the import duties. Import duties बढ़ाई जाएगी और जो गवर्नमेंट ने आइटम लिस्ट किए हैं उसमें ऑलमोस्ट 50 ऐसे आइटम्स होंगे, मोर देन 50 आइटम्स होंगे, दैट वुड इंक्लूड स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, विच is going to see a surge in the overall import duties. तो बात करें, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू सेल्फ रिलायंस कैंपेन. इंडिया की कोशिश है कि अब जो आत्मनिर्भर भारत है उसको प्रमोट करने के लिए या फिर जो इंपोर्ट है उसको डेमोरलाइज करने के लिए या फिर उसको डिक्रीज करने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव ले रही है सरकार. सो द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैन बी बूस्ट अप. So to increase the share of domestic and to decrease the share of import, government is trying to do this type of initiative, which they would be increasing the duty from 5 to 10%. This can only be sure once the budget is presented. तो अगर बात करें प्रीवियस बजट में तो ड्यूटीज बढ़ाई गई थी and these were mostly on the toys, electricals, footwears, furniture and electronics item by 20%, up to 20% तक इसमें प्राइस जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो इंक्रीज देखी गई है. अब क्या बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट को, व्हाई द गवर्नमेंट ट्राई टू इंक्रीज द ड्यूटीज. अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, सो द डिसीजन वुड एडिशनली गिव रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट कॉर्पस. जो गवर्नमेंट की अपनी कॉर्पस है उसमें कुछ एडिशनल फंड रेज होते हैं और जिस तरह से कोविड-19 के बाद अगर आपने देखा होगा हर परफॉर्मेंस हर सेक्टर में इकोनॉमी डेटोरेट की है. सो द एडिशनल corpus that would be coming by the duties, import duties, so that would be increasing to $210 billion to Indian corpus. और जो revenue losses है, जो mismatch है, उसको कुछ हद तक overcome किया जा सकता है इस तरह के import duties को लगा करके. So this is the reason, these are some of the benefits, that is why government is looking forward to increase the import duties. Now impact क्या होंगे इनके फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज रिसेंटली वी हैव ऑल्सो हैव अ डिस्कशन जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के टेस्ला नाम की जो कंपनी है, टेस्ला यू मस्ट बी अवेयर, इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और अगर बात करें जो दूसरी सबसे पोटेंट कंपनी जो इंडिया में आने वाली है, दैट इज IKEA. ये वर्ल्ड की स्वीडन की कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है. आप इनके वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हैं. दे आर ऑपरेटिंग ओनली इन द वन सिटी इन हैदराबाद, राइट. इंडिया में सिर्फ हैदराबाद में है IKEA और कहीं भी स्टोर्स नहीं है इनके. सो दे आर कमिंग टू इंडिया. तो अगर जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो इनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने ये चिंता जाहिर किया, दे हैव रेज्ड अ कंसर्न दैट दीज थिंग्स इज गोइंग टू स्टेप द ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट. They are already facing the problem in India. So these people, the executive, the board members of IKEA and Tesla wanted that government should not be increasing the import duty on their part. But what government is trying to do, they're trying to increase the share of manufacturing in Atmanirbhar Bharat more and more. And at the same time, they are decreasing the part of import. बट यहाँ पे दो रिपरकशन इसके हो सकते हैं कि जो बड़ी कंपनीज जिसके इन्वेस्टमेंट है इसके साथ जॉब्स भी रिलेटेड हैं, क्योंकि ये कंपनीज अगर आएंगे तो अल्टीमेटली दे वुड बी क्रिएटिंग मोर जॉब्स फॉर द पीपल एज वेल, राइट. एंड अल्टीमेटली जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा वो भी अधिक होगी. सो डेफिनेटली गवर्नमेंट वुड हैव टू प्लान इन अ मैनर कि ये सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सके. एंड हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक हाउ मच इंक्रीज वाज प्लान्ड फॉर द फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो फर्नीचर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या कमी रखी जाएगी या फिर उन दो सेक्टर्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ये देखना बहुत ही अहम होगा. एंड दिस कैन ओनली बी क्लियर व्हेन द बजट इज प्रेजेंटेड. Now the other topic is pre-budget consultation. The Finance Minister of India, that's Nirmala Sitharaman, is having a discussion with the state government. So this is essential part. बात करें अगर इस तरह की points की तो ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए relevant है. Not much important for the prelims examination. बहुत सारे सवाल आपके prelims में यहाँ पे important नहीं है. So recently the Finance Minister has chaired the pre-budget consultation meeting with the State Finance and the UT Minister via video conferencing. And these meetings seeks the suggestions कि क्या revival proposals होने चाहिए इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 की जो रिकवरी इकोनॉमी में कैसे देखी जा सकती है. Q2, Q3 के जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं. And how we can boost the revenue collection against the backdrop was because of the COVID-19 crisis. तो पोस्ट कोविड-19 की जो बातें हैं उसके डिस्कशन को लेकर के सारी बातें की गई हैं. Now coming to the other part, that is promoting cooperative federalism. The government is saying that we are trying to inculcate the ideas of cooperative federalism and make it alive कि जिस तरह से स्टेट के साथ कंसल्टेशन
बहुत ही नेसेसरी होगी. सो द मीटिंग हाईलाइटेड द साइन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इंडिकेटेड द मैनर इन विच यूनियन गवर्नमेंट वाज स्ट्रांगली सपोर्टिव द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन फाइटिंग अगेंस्ट द पेंडेमिक. और स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके लिए काफ़ी मदद की इस टाइम पे, कोविड के टाइम में, जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज या आत्मनिर्भर रोजगार अभियान जैसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाए गए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं टू बूस्ट द ओवरऑल इकोनॉमी. Now a hot suggestion was also been given for the फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशंस को लेकर के, या और भी जो दूसरे मुद्दे हैं दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी. उसके जो स्टेक्स होल्डर्स थे, खास करके CII की बात करें या फिर और भी फिक्की है, उन लोगों से भी कंसल्टेशन गवर्नमेंट ने पहले भी किया हुआ था और उनसे सजेशंस मांगी थी कि वो ऐसे सजेशंस दें जो कि बजट में इनकॉर्पोरेट किया जा सके. सो फाइनली वी हैव टू सी वंस द बजट इज कमिंग what things the government has incorporated in with these people, what the suggestion has been given by the state government, CII और जो फिक्की के द्वारा जो important suggestions दिए गए उसको गवर्नमेंट ने कितना इनकॉर्पोरेट किया अपने आने वाले बजट में. Now टेबल ऑफ 15th फिनेंस कमीशन रिपोर्ट, जो 15th FC की जो रिपोर्ट है, फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी गवर्नमेंट टेबल करने वाली है इस बजट सेशन के साथ. एंड अलॉन्ग दैट दे वुड बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेटरी मोमेरेंडम एंड दैट एक्शन हैज टू बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस. क्योंकि जब भी 15th फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आती हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब 14th फिनेंस कमीशन ने जिस तरह से एग्रीकल्चर शेयर्स पे शेयरिंग बढ़ाने की बात की गई थी, जिस स्टेट्स के एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसी साल UPSC ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उससे सवाल डायरेक्टली पूछे थे. तो मेक श्योर आप 15th फिनेंस कमीशन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें, बिकॉज दैट वुड बी वेरी रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Now the report seeks to address the whole range of issues including the transfer of fund to the local bodies, जो हमारे local bodies हैं, disaster management की grants है, performance incentives होते हैं, या फिर डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर्स की जो डिवोल्यूशन है सेंट्रल टैक्सेस पे, उस पर किस तरह से काम की जानी चाहिए. एंड द पीरियड दैट दे वुड बी प्रोवाइडिंग वुड बी टिल 2026. Now this is the last topic and editorial talks about the vaccine and the resilience. This has been reported in the Indian Express. So that talks about कि जो पोस्ट पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी हो रही है उसमें और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, खास करके वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को लेकर के सरकार को कितनी ध्यान देने की ज़रूरत है. So this can be very very important for your general studies paper 3 and equally important for your general studies paper 4 in the case study sections. So with the first batch of anti-COVID-19 vaccines, because we are successful that we have achieved and we have rolled out the vaccination process in the country, and this would be the biggest vaccination process in the entire world. तो जो emergency approval आई है vaccines की, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में एस्ट्राजेनिका जो है, जो बिगेस्ट स्वीडिश फार्मा कंपनी है, उन्होंने डेवलप किया है और ये मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में बाय द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक की जो अपनी कोवैक्सीन है. इन्होंने पॉजिटिव सिग्नल तो दिए हैं मार्केट को इकोनॉमी रिकवरी को लेकर के, बट अगेन मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड. गवर्नमेंट डेफिनेटली नीड टू हैव अ प्रो एक्टिव एक्शन ताकि ओवरऑल इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल मैनर से डेवलप किया जा सके. Now, holistic immunization policy is required. First is well-defined COVID-19 immunization policy would be required. That would be having a rebuilding program for a span of decades. और अगर बात करें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, they would be first in line of this because they are very critical to the virus. और सबसे पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि इन लोगों को दिया जाए, बट रूरल एरिया इज इक्वली इंपॉर्टेंट. खास करके जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी कवरेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. Now the demand of this worker also require the fair wages, labor recognitions that remain to be addressed. अभी तक इस चीज़ों को एड्रेस नहीं किया है. So this is the point that government need to look upon, and the impact on the mental and physical well-being is directed for direct and indirect severe of the COVID-19. ठीक है, जो भी लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, जो सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए सरकार किस तरह से इम्यूनाइजेशन प्रोसेस करती है, दैट वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's focus on the public health because government is not focusing much. So इस editorial में इस पे focus की गई है कि government को जो public health है उस पे focus करना चाहिए because this is not a electoral subject. मतलब political मुद्दा
नहीं होने की वजह से इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ है उसको गवर्नमेंट उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इन इंडिया हेल्थ हैज़ नेवर बीन अ फोकस पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट, राइट. तो करंट सिनेरियो में बात करें तो पॉलिसी मेकर डेफिनेटली नीड टू ड्राइव दिस इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर स्पेंडिंग और जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है. इंडिया की अगर बात करें तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी नेबरिंग कंट्री से भी खराब है. दैट इंक्लूड श्रीलंका, बांग्लादेश. उनकी हेल्थ केयर की जो स्पेंडिंग है वो इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा अधिक है. सो देयर नीड टू हैव अ एक्सेसिबल quality healthcare facilities comprising both traditional services and a holistic approach of well-being. So this is something that is a need of the hour. Now what would be the way forward? अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जो पॉलिसी मेकर है, जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे नीड टू प्रैक्टिस अ ड्राइव वेयर importance health spending and institutional development is required. And the pandemic has increased the vulnerabilities of large sector population. जो large section of population है वो impact हुई है. Many people have lost their job. So this is a time that government need to focus upon creation of job and increasing their overall salary, और जो उनकी शेयर है इकोनॉमी में वो बढ़ाई जा सके, लाइवलीहुड जो इंडिविजुअल की है वो बढ़ी जा सके. Now it is imperative that the people resilience for enhanced governance effort. जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो सोसाइटी में किस तरह से ब्लूप्रिंट बननी चाहिए, ऐसी ब्लूप्रिंट जो कि फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल हो, एंड एट द सेम टाइम इट शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी टू द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. सो दिस इज समथिंग दैट इज द नीड ऑफ द आवर. Now coming to the answers of yesterday question. So we will be discussing the answers first, then we'll be moving to the questions answers. So first question, that is for the first question, the correct option here is A, that GDP price deflator measure the difference between the real GDP and the nominal GDP. Nominal GDP does not include inflation and real GDP include the inflations. So I have taken this explanation from Indian Economy, Ramesh Singh book. The second question, the correct option here is A, that the person can be outsider, that he should not belong to the state where he is appointed as the free from the local politics, and while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of the state concerned. So the reference here is from the Indian polity, M. Lakshmikant. Now coming to the MCQs question of the day, the first question is from general science. Consider the following statement with reference to acquired immunodeficiency syndrome. The disease is caused by the human immunovirus, and the disease alters the digestive system of the infected person. So these are the two statements, like first is human immunodeficiency virus and second it affects the digestive system. तो आपको दोनों स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. जस्ट आंसर ABCD इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. The second question with regards to Chabahar port, consider the following statement. Chabahar port lie in the Gulf of Berbera and the port is located on the Moroccan coast. So this is an important geographical question, current affair question. आप इसको ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स दोनों में कंसिडर कर सकते हैं, राइट. सो डू इंश्योर एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मुझे बताएं कि कौन कौन से ऑप्शन क्वेश्चंस के आपको करेक्ट ऑप्शंस पते हैं और आप हमें ये आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.